Good morning everyone. Today we are going to discuss second poem of Flamingo, an elementary school classroom in a slum. It is written by Stephen Spender. He was an English poet and essayist also. It means that Stephen Spender has written English poems as well as so many essays also. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication and edge of being, the creative element, the struggle of the modern, and an autobiography. World within world, in an elementary school classroom in a slum, has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. In this poem, Stephen Spender had described about the concentrated themes of social injustice, because there is no social injustice. When we will go through the poem, we have come to know about the real situation of this elementary school. And next is about the class inequalities, because there are so many levels of classes in our society and those all levels are not equal. So we'll discuss about these things in our poem. Before you read, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? आप कभी गए हो किसी elementary school में जो कहाँ situated है, किसी slum area में? What does it look like? अगर आप कभी गए हो तो आप इसके बारे में सोचिए कि ये कैसा दिखता है ये स्लम एरिया. Far, far from gusty waves, these children's faces. Far means so away. तो इन बच्चों के जो चेहरे हैं, far far, इन बच्चों के चेहरे कैसे होते हैं? Those are full of activeness, those are full of enthusiasm, energy, shine means फेसेस आर फुल ऑफ एक्टिविटी. जो बच्चों के फेसेस होते हैं उसमें एक एनर्जी होती है, एक स्फूर्ति होती है. लेकिन इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? फार फार, बहुत दूर हैं. गस्टी वेव्स. गस्टी वेव्स आर दोज वेव्स विच आर वेरी मच पावरफुल, वी कैन से एक्टिव एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म. तो इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो एक सडन जो स्ट्रॉन्ग फेस पे रिएक्शन होता है, एक चार्म होता है, वो बहुत दूर है. इन बच्चों के चेहरे पे ऐसी कोई भी स्फूर्ति नहीं दिखती. लाइक रूटलेस वीड्स. वीड्स वी ऑल नो दैट दीज आर अनवांटेड ग्रास. लाइक रूटलेस वीड्स. तो ये कैसे हैं? रूटलेस वीड्स की तरह. द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर. इसकी बात हो रही है. उनके जो चेहरे पे बाल बिखरे हुए हैं वो एक रूटलेस वीड्स की तरह दिखाई देते हैं. वो रूटलेस वीड्स हम मान के चल रहे हैं बिकॉज these are unwanted, because proper formation of hair and face is not seen. Their pallor. Pallor means, here meaning of this word is, we can say because of pallor का real मतलब येलो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डल फेस का कलर है उसके उस चेहरे पे क्या बिखरे हुए हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं जो कि हमें किसकी तरह नजर आते हैं? रूटलेस वीड्स की तरह. The tall girl with her wig down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky ear of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. एक गर्ल बैठी है, टॉल गर्ल बैठी है, जो अपने सिर को नीचे किए हुए बैठी है क्लासरूम में, बिकॉज ऑफ ओवर एज. उसे शायद अच्छा नहीं लग रहा है उस क्लासरूम में क्योंकि वो ओवर एज्ड है. The paper seeming boy, one boy is there who is like a so thin as thin paper. वो पेपर की तरह, वो इतना पतला है जैसे कि पेपर हो. With rat's eyes, और उसकी आईज क्या है? रैट की तरह. जैसे हम किसी रैट को देखते हैं, only its eyes shine. उसकी सिर्फ आंखें नजर आती हैं. वैसे ही इस बच्चे की भी सिर्फ आंखें नजर आती है क्योंकि इसकी बॉडी इसकी एज के अकॉर्डिंग फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है. And stunted, अनलकी एयर. और क्या शो कर रहा है? अनलकी. जैसे हमारे पास, हम जब किसी वंशज को देखते हैं तो उसके पास प्रॉपर्टी होती है, होम होता है, अपने वंशज को जो लेता है, अपने पेरेंट्स से जो लेता है. लेकिन इनके पास क्या है? अपने वंशावली में क्या मिला इन्हें?
ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, सिर्फ ट्विस्टेड बोन्स, क्योंकि वो बोन्स की जो फॉर्मेशन है, बोन्स की जो एक एनर्जी होती है वो भी इन्हें नहीं मिली है। रिसाइटिंग अ फादर्स मैल डिजीज, और उनकी बोन्स को देख के, उनकी बॉडी को देख के क्या हमें नजर आता है कि वे अपने जो उनके फादर के जो डिजीज है उनको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। उन्हें अपनी वंशावली में जैसे औरों को प्रॉपर्टी मिलती है, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, इन्हें अपने पिता से ये डिजीज मिले हुए हैं। His lesson from his desk means there is no lesson in his desk. उस जिस काम के लिए बच्चे को स्कूल भेजा है वो काम तो वहां हो ही नहीं रहा। At back of the dim class and one unnoted, sweet and young, his eyes lay in a dream of squirrel's game in tree room other than this। और एक और बैठा है बच्चा बैक साइड डिम क्लास, क्योंकि वहां पे प्रॉपर लाइट नहीं है क्लासरूम में। वन अननोटेड, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया है। स्वीट एंड यंग, स्वीट है, यंग है। हिज आईज लिव इन ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं, उसके जो ड्रीम्स हैं, वो उस क्लासरूम के अंदर से जो बाहर की चीजें हैं वो उसको देख रहा है। जैसे बच्चा क्लासरूम में बैठा होता है, वो सिर्फ एक और प्रॉपर एनवायरनमेंट में होता है, दैट व्हाट टीचर इज टीचिंग एट व्हाट आई हैव टू डू नाउ, बट देयर इज नो लेसन। और नेक्स्ट ऑफ स्क्वायरल्स गेम, तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी आंखें किसका ड्रीम देख रही है, स्क्वायरल की गेम की ड्रीम देख रही है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, कि एक ट्री पे एक स्क्वायरल होगी और उसकी वो गेम के बारे में वो सोच रहा है, अदर देन दिस। और जबकि उसको क्या सोचना चाहिए कि हम क्लास में किस लिए बैठे हैं, हमें कौन सा चैप्टर करना है। तो इन सब के बारे में ना सोचते हुए वो कुछ और ही सोच रहा है। Next is one saw cream walls, donations, Shakespeare's hat, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. Here meaning of these sour cream wall. जैसे वॉल्स में प्रॉपर पेंट किया होता है, वैसे वहां कोई प्रॉपर पेंट नहीं है। ऑन सॉर क्रीम वॉल, वॉल से कैसी स्मेल आ रही है, जैसे सॉर क्रीम से आती है, उस क्रीम से आती है जो काफी दिन की बासी होती है। डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैड, और वहां क्या चीजें हैं डोनेशन में दी हुई, जैसे कि शेक्सपियर की एक पेंटिंग है। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह के टाइम जैसे बहुत सुंदर सुबह होती है, दैट इज फुल ऑफ फ्रेशनेस, लेकिन उनकी सुबह ऐसी नहीं है। क्लाउडलेस एट डॉन, जैसे मॉर्निंग में एक फ्रेश एनवायरनमेंट होता है, देयर मॉर्निंग इज नॉट सो फ्रेश। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और क्या देखते हैं वहां पे सिविलाइज, जो उस प्रॉपर एरिया की जो हाई राइडिंग हाई डोम है, जो बिल्कुल ऊंचे ऊंचे एरिया हैं, बस वो वहां से नजर आते हैं। सिविलाइज डोम जो प्रॉपर प्लेसेस है वहां के, राइडिंग ऑल सिटीज, और जो सब उनकी सिटी से सबसे ऊंचे है। बेल्ट फ्लॉरी टायरोलेस वैली, टायरोलेस वैली इज इन ऑस्ट्रिया, वहां के फ्लावर्स बेल की तरह होते हैं, जैसे बेल की शेप है वैसे वहां के फ्लावर्स होते हैं, उनकी वहां पे पिक्चर है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और एक ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो क्या बता रहा है कि दुनिया सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि वो उस क्लासरूम से, उस स्लम एरिया से बाहर का वर्ल्ड, दे डोंट नो व्हाट इज द रियल वर्ल्ड, सो दैट ओपन हैंडेड मैप इज टोटल वर्ल्ड फॉर देम टू नो अबाउट। जैसे हमें एक वर्ल्ड का मैप दिया होता है, वी कैन find out where this proper station is, but they have no chance to think about it. And yet for these children, these windows, not this map, their world. But what is reality? जो वर्ल्ड उन्हें अपनी विंडो से नजर आता है, क्लासरूम की विंडो से नजर आता है, वही उनका रियल वर्ल्ड है, नॉट दिस मैप। ये मैप नहीं जो वहां पे लगा हुआ है वॉल पे। Where all their futures पेंटेड विद अ फॉग, और उस मैप के अकॉर्डिंग, उस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उनका जो फ्यूचर है वो किससे पेंट किया हुआ है, फॉग से। मीन्स उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल धुंधला है। नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। उनकी जो विंडो से जहां वो बैठते हैं एक बहुत ही ज्यादा नैरो स्ट्रीट नजर आती है। सील्ड मीन्स वो कवर्ड है अदर एरिया से, बिल्कुल सील की हुई एक स्ट्रीट है। इन विद द लीड स्काई, और उस स्ट्रीट में से सिर्फ क्या नजर आता है,
थोड़ा सा आसमान, यही उनका वर्ल्ड है, यही उनका जो अब सच की दुनिया है, ये वही है उनके लिए। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो किससे बहुत दूर है, रिवर से, जो मीन्स नेचुरल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमारे वर्ल्ड में। किसे रिवर कहते हैं, किसे कैप्स कहते हैं, किसे टाउन कहते हैं, किसे सिटीज कहते हैं। तो वो सब उनका जो वर्ल्ड है बहुत दूर है रियल रिवर से। कैप्स, आइस कैप्स, और जो डीप सी होते हैं उनमें भी कैप्स हैं, तो यहाँ पे इसके दो मीनिंग्स होंगे। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स पॉलिटिशियन यूज्ड टू मेक सो मेनी प्रोमिसेस विद दीज किड्स कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो सिर्फ प्रॉमिस करके जाते हैं, रियलिटी में उनको वो कोई हेल्प नहीं करते। श्योरली शेक्सपियर्स इज विक्ट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। श्योरली, जो वहां पे शेक्सपियर की पेंटिंग लगी है, दैट इज विक्ट मीन्स दैट इज नॉट यूजफुल फॉर देम, they don't have to do anything with this painting. The map a bad example, and that map which we have read just now in previous paragraph, that open-handed map is also bad example for them, with ships and sun and love tempting them to steal. What they will do with it, ये इनको किसकी तरफ लेके जाएगा, एक टेम्पटिंग, एक गलत चीज की तरफ लेके जाएगा, जिससे उनकी किस चीज की इच्छा बढ़ेगी कि इन चीजों को यहाँ से चुरा लिया जाए। Far lives that slyly turn in their cramped holes, उनकी जो जिंदगी है वो जो cramped holes है, उससे भी वो कम जगह में उन्होंने रहना शुरू किया है, उससे भी वो कम जगह में रहते हैं। That slyly turn means वो बिल्कुल छिप कर जिसे बोलते हैं, because they don't want to face reality of that life, turn in their cramped holes. Their homes are very much cramped, very much narrow. From fog to endless night means their life start with fog and end with the night. वो उनकी जो जिंदगी है वो एक धुंध से ही शुरू होती है और डार्कनेस पे खत्म हो जाती है। On their slag heap, slag का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, heap, तो उनकी जो बोन्स है, उनकी जो बॉडी है वो किसकी तरह लगती है, एक वेस्ट मटेरियल जैसे पड़ा होता है उसके हीप की तरह लगती है। These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottles bits on stones. क्या पहनते हैं वो, स्किन, जिसके अंदर से क्या है, पीप होता है झांकना, जिसके अंदर से साफ साफ नजर आती है उनकी जो बोन्स की शेप है। एंड स्पेक्टेकल ऑफ स्टील्स, उनको रियल वर्ल्ड दिखाया जाना चाहिए। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेल्टेड ग्लास, जैसे हम किसी स्पेक्टेकल को प्रॉपरली उसकी शेप देते हैं, नॉरिश करके, उसे मेल्ट करके, वैसे उनकी बोन्स प्रॉपर वे में नहीं है। लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, और उस बॉटल को, बॉटल मीन्स हेयर, जो इनफैक्ट दे डोंट नो अबाउट द रियल वर्ल्ड। With the mended glass, like bottle bits on stones, these children are wearing those glasses which are not mended properly, like bottle bits on stones. और वो कैसे नजर आते हैं, जैसे बॉटल के पीसेस पड़े होते हैं स्टोन पे, वैसे ही वो ग्लासेस के पीसेस नजर आते हैं, because those are not properly bended. All of their time and space are foggy slum. पूरा वो टाइम किस में बिताते हैं, उस जगह पे जो बिल्कुल फॉगी है, बिल्कुल एक स्लम एरिया है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए इस मैप को किससे भर दो, ब्लॉट होते हैं स्टेन्स, ऐसे दाग से, ऐसे धब्बों से भर दो जो रियल लाइफ में फेस करते हैं इस स्लम एरिया में, जितने की बड़ा एज बिग एज डूम, जितने की बड़े वो डूम है जो उनको वहां से नजर आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट गवर्नर and inspector visitors who used to visit there. Unless governor, inspector, visitors, this might become their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. रियल लाइफ में उनके जो वर्ल्ड है वो क्या है, कैटाकॉम्स की तरह है, बहुत ही ज्यादा तंग तहखानों की तरह है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो जब भी ये विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, गवर्नर और इंस्पेक्टर, वो क्या है, उनके लिए रियल वर्ल्ड लेके आए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इस मैप को ब्रेक करो, इन बाउंड्रीज को ब्रेक करो जो उनके लिए बनाई है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उनको रियल वर्ल्ड दिखाओ, हरियाली दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनके वर्ल्ड को कैसा बनाओ, रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड, कि वो रेत पे चले,
रियल वर्ल्ड में चलें एंड लेट देयर टंग्स रन नेट इनटू बुक्स, और उनकी जो टंग है वो रियल बुक्स को पढ़ें. वाइट, प्लीज like and subscribe my channel. Thank you for watching.